Good evening, everyone. Welcome, Dr. Gupta and Dr. Professor Sanjay Raut. Welcome to our session. We have a very inspiring session today. We'll be going to discuss about your health and how your health is related to Ayurveda and how Ayurveda can help you to keep your health in this hectic life today. Dr. Sanjay Raut, he is a professor, he is a lecturer, and he does research in many fields actually. And at the same time, he is a professor also. And with me, Dr. B.L. Gupta. B.L. Gupta is Ayurveda charge, and he is more interested in research. So we are going to talk with him about his research and how the Ayurvedic medicines can help you to keep your health. Dr. Raut and Dr. B.L. Gupta, I have given just a brief introduction of yours. If you would like to say something to our audience about yourselves, please add to your introduction. Myself, B.L. Gupta from Rajasthan, Jaipur. Okay, sir. About your profession and what are the researches and what is your occupation and all that. Just a brief introduction so that the audience come to know about yourself. मैं जो आयुर्वेद के मामले में रिसर्च कर रहा हूँ और विगत 40-45 साल से मेरा रिसर्च में ही ध्यान है कि आयुर्वेद में की हर्ब से मनुष्य जाति को कैसे लाभ मिल सकता है और कैसे स्वास्थ्य सही रह सकता है. So let me introduce Dr. B.L. Gupta. He is an eminent person working since more than 30 years in the field of Ayurveda, especially enlisted in hyper-ending research on health, transformations, and Kayakalp, one of the word used like transformation of health of the body. And he is doing eminently research in different ancient scripts throughout the world and use different methodology to develop new typology of medicines and process for healing of the bodies. His work is been spread out throughout the world by different products, different solutions, and he individually consult with different people, especially on the health message in all. He currently resides at Rajasthan and do his consultation both offline and online through global clients and patients and all. Regarding myself, I'm Dr. Sanjay, basically into medicines and psychology and cardiac and oncology is my area of practices. And apart from that, I involve in innovations, research and developments throughout Pan globes, been part of various academics, non-academic think tanks and innovation organization as a board of members. Really emphasize on to create solutions for the future. So we can initiate questions, Sinha sir. I hope this is a interactive sessions. गुप्ता जी आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आप कंफर्टेबल यूज कर सकते हैं. आई ट्रांसक्राइब. I can add the points. मैं उसको ये कर लूँगा. Yes, Dr. Gupta. So with this, I am coming to my third question. So what are the major herbs in Ayurveda? So can you please tell our audience? वैसे तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन अपनी डिस्कशन में पहले आ गया है. लेकिन मेजर हर्ब में जैसे मैंने बताया आपको शतावरी, ब्राह्मी, पुनर्नवा, त्रिफला, त्रिकुटा, काली मिर्च को, सौंठ को और पीपल को बोलते हैं आयुर्वेद में. अच्छा. तुलसी, बेलपत्र, अजवाइन, अपामार्ग, मेथी, जीरा, सौंफ, अंकोल, मकोई, एलोवेरा. अच्छा. ये ऐसे हर्ब्स हैं जो कि हमें इजीली अवेलेबल है. ये ऐसे हर्ब्स हैं जो हमें इजीली अवेलेबल है और इनसे हम हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं. जैसे मैंने बताया आपको शंखपुष्पी है, पुनर्नवा है, शतावरी है, अंकोल है. यूजुअली मौसम के हिसाब से लेते रहे तो ये हर्ब्स भी अपने घर में रहेंगे तो मैं सोचता हूँ कि 50% बीमारियां तो होंगी ही नहीं. इससे ही जुड़ा एक सवाल ये है
कि हर्ष जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है हर हर जगह। अभी तो चूंकि एक पतंजलि के चलो स्टोर हैं बहुत सारे, उनका नेटवर्क काफी बढ़ गया है, तो आपको पतंजलि जी के जी स्टोर मिल जाएंगे। या कुछ दूसरे जो ब्रांड है, पतंजलि के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है कि चलो वहाँ पे बाबा रामदेव हैं और ये सामाजिक संस्था है, तो वहाँ से जो दवा मिलेगी वो सही सब दवा मिलेगी। लेकिन दूसरे ब्रांड पे लोगों का उतना फेथ नहीं है। तो जो हर्ब्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ हमारे यहाँ तो हमको मिल जाता है कि यहाँ जो होलसेल मार्केट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसा जी हाँ। सोर्स है कि लोग ये पता लगा सकें कि भाई उनको अगर कोई हर्ब्स चाहिए तो कहाँ से वो प्रोक्योर करें, कैसे प्रोक्योर करें, और कैसे वो जाने कि भाई ये जो हर्ब्स है वो असली है। क्योंकि उसकी पहचान असल में जो है वो आयुर्वेदा चार्ज को ही होती है। बाकी लोगों को आप जो नहीं, बताएंगे। इसमें इसमें सर ऐसा है कि नामों के हिसाब से लोग बाग अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम होते हैं। अच्छा। पुनर्नवा है, हम्म, इसको साठी भी बोलते हैं, गधे पूर्णा भी बोलते हैं, तो इसलिए इनके नाम अलग अलग है। बाकी ये जो मैंने हर्फ आपको बताए हैं, ये हर्फ इजीली हर जगह पे अवेलेबल है भारत में। गांव से लेके शहर से लेके हर जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये हर्फ मौजूद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अंकोल है, उसके बारे में आम आदमी को क्या, आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी पता नहीं है। मैं अंकोल के बारे में, हम्म, जैसे मैं बता रहा हूँ आप, ये एक ऐसा हर्ब्स है चमत्कारिक, अच्छा। जिसको आयुर्वेद में भी इसको जादुई दुर्लभ मूल्यवान औषधि कहा है। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, एक पॉइंट आपको गुप्ता जी रोकूंगा। सिन्हा साहब, हाँ आपने संजीवनी का नाम सुना है? हाँ, संजीवनी, मृत संजीवनी का संजीवनी। नाम सुना है। और हाँ। स्कूल के दिनों में मुझे दिया भी गया था खाने के लिए, कि मुझे जल्दी हम्म। से कोई चीज याद नहीं रहता था, तो संजीवनी बूटी ऐसा। संजीवनी की बहुत वैरायटी होती है, बहुत वैरायटी। ठीक है। हम्म, कुछ जो पहाड़ों में उगती है, कुछ ये होती है। तो संजीवनी की सबसे, जैसे हर एक पौधे में, जैसे शंखपुष्पी, जैसे जंगल में कोई शंखपुष्पी होता है, अलग अलग रीजन्स में शंखपुष्पी होता है। तो जैसे पहाड़ में शंखपुष्पी, जितने ऊपर लेयर में कोई हर्ब उगे नेचुरली, तो उसकी मतलब मेडिसिनल वैल्यूज बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। हम्म, क्योंकि अपर लेयर में क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि चंद्र की जो किरणें होती हैं, हम्म, उसकी जियो डायनेमिक रीजन के हिसाब से वो हर्ष के ऊपर जब गिरती है तो अमृत पैदा, अमृत मतलब उसमें हर्ष की केमिकल कंपोनेंट्स को और रिजुविनेट कर देती है। ठीक है। तो अंकोल को एक तरह मृत संजीवनी का, एक एक दो तरह का संजीवनी, मृत संजीवनी होता है। एक होता है जो पहाड़ के ऊपर गंधमार्दन, जो सुना होगा आपने एपिक्स में, एक संजीवनी था, अभी भी है। और एक संजीवनी जो स्थल में है, उसका नाम है अंकोर। ओके, जिसके बारे में गुप्ता जी बता रहे हैं। एक हम्म, मृत संजीवनी, दो ये तरह का एक जीवित संजीवनी है, मतलब जो स्थल भाग में है। और हम्म, पर्वत में जो है, जिसके बारे में हमने एपिक में पढ़ा था। अपने हर्ब्स के बारे में आपने बता रहे थे मेरे को, हम्म, तो जैसे गिलोय है, नीम है, ये जो औषधि है ये तो हर जगह पे है। हाँ। अंकोल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ हम्म, विशेषकर। हम्म, अंकोल एक ऐसा पेड़ है, प्रकृति का दिया हुआ वरदान मनुष्य के लिए। जी। लेकिन भारत के 80% आयुर्वेदाचार्य अंकोल का नाम ही नहीं जानते। मैंने भी नहीं सुना था, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म, 80% आयुर्वेदाचार्य अंकोल का नाम नहीं जानते। हम्म, जो 20% जानते हैं, उनमें 18% अंकोल को तांत्रिक पेड़ मानते हैं, तांत्रिक। क्योंकि तंत्र में इसका विशद वर्णन है। अच्छा अच्छा। लेकिन तंत्र में ही औषधियों का भी वर्णन है, बीमारियों के इलाज का वर्णन भी तंत्र में ही है। अच्छा अच्छा। ये आश्चर्य की बात है कि हम्म, आयुर्वेदाचार्य तंत्र तो मानते हैं, लेकिन हम्म, इसमें तंत्र की किताबें पढ़ी नहीं। तंत्र में इसका इतना वर्णन है मनुष्य की चिकित्सा के लिए, हम्म, कि दत्तात्रेय तंत्र में एक जगह लिखा हुआ है कि हम्म, एक बार मृतावस्था तक पहुंचे हुए व्यक्ति को भी एक बूंद अंकोल की दे दी जाए हम्म, तो पुनः जीवित हो जाएगा। मृत संजीवनी विद्या नामक जगह पे लिखा हुआ है ये, इसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। हम्म, लेकिन मैं उस चीज पे तो नहीं जाता। बात बाकी मैंने इसका जो प्रयोग किया है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें अंकोल कामयाब नहीं। बड़ी बात है। क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी में भी अंकोल कामयाब है। अब हम्म, इसका साइंटिफिक कहीं भी अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में जरूर हुआ है, वारंगल यूनिवर्सिटी में हुआ है, आपके छपरा यूनिवर्सिटी में हुआ है, अच्छा। अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हुआ है।
हाँ हाँ। और राजीव गांधी बेंगलोर में भी हुआ है। हम्म, लेकिन वो जो रिसर्च हुए है ना, वो हम्म। रिसर्च इनका लेबोरेटरी रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च नहीं है। स्टडी किया हो? मैंने 25 साल से मैं इस हर्ब्स के ऊपर शोध कर रहा हूँ, अंकोल के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे वनस्पति का ऑयल नहीं निकलता है। वनस्पति का? इसके फल होते हैं अच्छा अंकोल के, अच्छा। उसके फल में से बीज निकलते हैं, जी। उन बीज में से ऑयल निकलता है। वो ये ऑयल है, ये मधु से ज्यादा गाढ़ा होता है। अच्छा। और ये ऑयल, ओहो। ये ये पिएगा नहीं ऐसे। और ये तो पूरा जेली जैसा दिख रहा है, ऐसा हाँ च्यवनप्राश जी, जैसा दिख रहा ये है। च्यवनप्राश जैसा मधु से ज्यादा गाढ़ा है, हाँ हाँ। जामुन कलर का होता है। ये किसी ने देखा भी नहीं है इसको। इसको देखने वाले गिने चुने लोग होंगे अच्छा। जो मेरे संपर्क में है। और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी इस ऑयल को निकालने में असमर्थ रहे। तो ये एक तो इस वजह से मतलब इसकी ख्याति नहीं हो सकी और उपयोग नहीं आ सका। अच्छा फिर इसी से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसी अंकोल से। अच्छा। ये एक्सटर्नल यूज का है। तो जितने भी चर्म रोग हैं, पेन रिलीफ है, हम्म। कान रोग है, अच्छा। नाक में है, हम्म। हाँ जुकाम में, मैंने इसको कोरोना में यूज किया है। अच्छा अच्छा। इसकी एक एक बूंद नाक में डालने से हम्म। जितने भी व्यक्तियों ने डाले हैं, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपको जो मैं बता रहा हूँ, हम्म। ये हर्ब ऐसा इम्पोर्टेंट हर्ब्स है। हाँ हाँ। तो इसमें, इसके अलावा जुकाम में सब में काम करता है ये। हम्म। स्ट्रिप तो मैं आपके मोबाइल नंबर पे मैं इसके सारे डिटेल भेजूंगा। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर भेजिए मुझे। और ये इसका है जो संजीवनी कल्प है, अच्छा। ये हमारा, हम्म। ये प्रोडक्ट हमने ही तैयार किए हैं, हमारी रिसर्च है अच्छा। और हमारा इजाद किया हुआ इसका फार्मूला है। हम्म। और हमने हमारे व्यक्तिगत लोगों को देखे देखा है। हम्म। मेरे भाई के 2 बार हार्ट अटैक हो चुका। अच्छा। जब से इसको चालू किया है, हम्म। हार्ट अटैक नहीं हुआ। गठिया में, लकवा में, माइग्रेन में, कैंसर में, टीबी में, हम्म। एंटी फर्टिलिटी में, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन में, हम्म। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है। स्पेंडोलाइटिस है, स्लीप डिस्क है, हम्म। बुखार है, सब में काम करता है। बहुत और बढ़िया। इतना जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है कि हम्म। इसकी एक एक बूंद आदमी महीने 2 महीने ले ले, हम्म। साल में यदि एक आदमी महीने भर ले लेगा स्वस्थ, तो वो बीमार होगा ही नहीं। ये क्या मतलब मुझे था? 6 साल हो गए, मेरे बुखार नहीं हुआ। बहुत ये बढ़िया, है। बहुत तो बढ़िया। आपको मैं बता रहा हूँ ना, मेन जो चीज है, मतलब इसे प्योर अंकोल, ये संजीवनी कल, और हम्म। ये जो क्या नाम से एक्सटर्नल यूज वाला है। तो आपकी जो ये सारी दवाइयां हैं सिर्फ आपके पास ही मिलती हैं या आप हाँ मार्केट? जी, हाँ जी, इसका ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हमारे पास से ही है। मतलब कि जो जैसे, अंकोल की दवाई, और भी जगह जो, जो अंकोल की दवाई जानते हैं, वो हाँ। हमसे मंगवाते हैं। अच्छा। और हमने ही इसकी रिसर्च लोगों को बताई है, हाँ लोगों को हम बता भी रहे हैं हाँ। कि इससे जो परिणाम के फायदे हैं। अच्छा। कैसा भी चर्म रोग हो खत्म हो जाएगा, कैसा भी पेन हो लगाते ही विद इन मतलब 2-3 मिनट्स पेन खत्म हो जाएगा। हम्म। बिच्छू खा ले, पपैया खा ले, मधुमक्खी काट ले, हम्म। एक बूंद डालो, इमीडिएट जहर उतर जाएगा, सूजन भी नहीं आएगा। तो इसके विषज्ञ सर्प इसमें भी काम करता है। ये सर्प में है, कुत्ते के है, बिल्ली के है, इसका नाम विषज्ञ भी है, अच्छा अंकोल का एक नाम। अच्छा। अच्छा। रसायन में भी काम करता है। इससे पारे की भस्म बहुत उत्तम कोटि की बनती है। तो इसका रसायन शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में हम्म। और आयुर्वेद में वर्णन काफी है। लेकिन असल बात यह है कि 2500 साल पहले इससे चिकित्सा होती थी। अब इसकी चिकित्सा करने वाले लोग नहीं रहे, और अच्छा। न तेल निकालने वाले लोग। तो इनके पौधे अभी भी निकलते हैं या वो भी रेयर हो गए हैं ऐसा? इसके 90% इस पेड़ की वेस्टेज जाता है। वेस्टेज जाता है क्योंकि लोगों को पता हाँ, नहीं। इस लोग। पेड़ में ये खासियत है, हम्म। अंकोल के तेल से, जो बादीगर लोग आम का पेड़ उगाते हैं ना, बचपन में देखा होगा, बादीगर लोग आते थे, वो हम्म। आम का पेड़ उगाते थे। वो इस अंकोल तेल की करामात है। आधा घंटे में आम का पेड़ उग करके फल आ जाता है, इतना इंस्टेंट पावर है। लेकिन विद्या है ये। मैं इसका प्रयोग नहीं किया है, मैं जानता नहीं। हाँ, ये जरूर है, मैंने मूंग के मामले में प्रयोग किया है, आम के पेड़ में प्रयोग किया है। 3 साल में 14 फीट का आम का पेड़ हुआ है। अच्छा। हाँ जी, पेड़ लगा हुआ है। हाँ हाँ।
अभी दिन होता तो आपको बता था, मेरे आम के पेड़ के पत्ते जैसे आपको हजारों पेड़ में भी नहीं मिलेंगे, इतने बड़े पत्ते हैं, और मेरी हथेली जितने जोड़े पत्ते हैं आम के। जामुन में दिया तो जामुन, इतनी जामुन आई, पत्ते पत्ते पे जामुन आ गई। तो आपका जो प्रश्न था, राउत साहब ने बताया था, एक तो फसल ज्यादा बढ़ाना, गुणवत्ता कम करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर फसल भी बढ़ाएगा हाँ। और गुणवत्ता भी बरकरार रखेगा। इस साल से मैंने आय मतलब इसका खेती में भी प्रयोग शुरू कर दिया है, हम्म। फलों में भी प्रयोग शुरू कर दिया है। हम्म। मेरे जो निजी जानकार हैं, उन लोगों के पास में, और रिजल्ट उनके अच्छे आए हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सर आपने मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जो भी रिसर्च आपने अभी तक किए हैं पिछले 30-35 साल में, तो जी, उस रिसर्च को आम लोगों तक पहुंचाने में और सरकार तक पहुंचाने में आप किस हद तक सफल रहे हैं, कि आपको लोग और कहाँ से सहायता मिलती है या सपोर्ट लोग करते हैं? pandemic के टाइम पे हम्म। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी। अच्छा। पूना, पूना जो वायरोलॉजी है, वहां हम्म। मैंने चिट्ठी लिखी थी ICMR के यहाँ। अच्छा उन्होंने मेरे लेटर को भी वापस भिजवा दिया और दवाइयों को भी वापस भिजवा दी। अच्छा। अच्छा। यहाँ तो मतलब ये मामला है। मेनली कारण क्या है कि हम्म। यदि मेरे को सरकार यदि सहयोग दे दे, हम्म। तो कोविड पेशेंट भी इससे बड़ी अच्छे रिकवर होते हैं। अच्छा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हम्म। मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराया। ओ। अब आप देख लीजिए मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन उन्होंने वापस भिजवाया तो उन्होंने आपको कुछ पत्र भी लिखा कि क्यों वापस भेज रहे हैं, या सिर्फ भिजवा दिया वापस? पत्रों का जवाब ही नहीं दिया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि हम्म। आप जैसे महानुभाव से मेरी मुलाकात हुई है, और आप इस नहीं, मामले में जान रहे हैं। मैं चलो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना आपकी जानकारी और जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपने रिसर्च किया है, उसको प्रोपेगेट करने में तो मैं मदद करूंगा ही कि वो हमारी पहुंच में है। लेकिन मैं हम देखते हैं कि हमारी जो आजकल के आज की सरकार है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हम्म, काफी उत्सुक रहते हैं आम आदमी से जुड़ने के लिए। उन्होंने अपना चैनल बना के रखा हुआ है। तो कभी आपने जी हाँ। उसका उपयोग करने की कोशिश नहीं की कि उनके उन तक ये ऐसी जानकारी पहुंचाई जाए? वो तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, के ऑफिस में। मैंने तो लेटर लिखा है। देखिए कारण क्या है कि मैंने पत्र लिखा था हम्म। इसको, आयुष डिपार्टमेंट को, अच्छा। भाई मेल भेजा था। उस समय पे पैंडेमिक टाइम पे तो सब कोरियर वगैरह सब बंद थे। हम्म। CCRS के RM प्रधान जो थे, उसके हेड, उनसे भी मैंने मोबाइल पे बातचीत की थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कई प्रक्रियाएं बताई कि इसमें कहीं वो मामला है, वो मामला है। तो हम्म। तब तक तो मेरा भी रिसर्च इतना ज्यादा नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन इस पैंडेमिक में जो मैंने मतलब प्रयोग किए हम्म। मेरे परिवार के ऊपर, तो मेरे परिवार में से किसी को बुखार भी नहीं हुआ, न जुकाम लगी न बुखार हुआ। और हम्म। मेरी फैमिली पूरी आज प्रोटेक्ट है। किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज न मेरी मिसेज में है, न मेरे में है, न मेरे बच्चों में। बहुत बड़ी बात है। एक बात बताऊं आपको, एक आश्चर्य की बात कर रहा हूँ, नया प्रयोग की। एक लेडीज है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, MP में, 35-40 साल की एज है। हम्म। उसके कान के 2 ऑपरेशन हो चुके, अच्छा। और उसके कान में से मवाद आना बंद नहीं होता है। ओ। डॉक्टर ने ये कह दिया, अगर मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, आप ये इन्फेक्शन फैलता जाएगा। हम्म। किसी साधु ने उस लेडीज को बताया कि हम्म। आप अंकोल का तेल मंगवाइए। मैंने उस लेडीज को दोनों ऑयल भेजे, अंकोल संजीवनी कल्प, जो हम्म। ओरल लेने वाला है, ये पेवर है मतलब ये, अच्छा। और ये है जो 100 डिग्री डाउन करके बनाया हुआ है, हम्म। एक्सटर्नल यूज वाला अंकुर ऑयल। मैंने उस लेडीज से बोला कि ये वाला मत डालना, आप मंगा लो लेकिन डालना मत, क्योंकि अनुभव ही नहीं। साधु ने तो बता दिया अंकोल तेल, लेकिन हम्म। अंकोल तेल ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, कान में डालोगे तो आपकी जलन हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने एक एक बूंद ये 15 दिन डाली है। 15 दिन में उसका कान बिल्कुल चेकआउट हो गया है, जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया था हम्म। कि ये कभी ठीक नहीं हो। साधु सन्यासी लोग जानते हैं अंकुर के बारे में, कोई। या फिर साउथ इंडिया में कुछ लोग जानते हैं। हाँ, साउथ में लोग ये ज्यादा आयुर्वेद के बारे में ज्यादा लोग हाँ जी, हाँ जी। जागरूक हैं लोग अभी भी साउथ में। नहीं, इतने रिसर्च हुए हैं हम्म। उतने साउथ में ही हुए हैं। साउथ की जो यूनिवर्सिटीज है ना, हम्म। वही रिसर्च भी नॉर्थ इंडिया में नहीं हुए ज्यादा। अच्छा। रिसर्च भी साउथ इंडिया में ज्यादा हुआ, लेकिन वो लेबोरेटरी तक ही सीमित है। ओहो।
उनका क्लिनिकल वो नहीं हुआ। मैं आप मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैंने भी खुद के बारे में बता रहा हूँ कि मुझे जैसे कि फ़ोन है या टीवी है या कंप्यूटर है, वो मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम पे सुनना पसंद करता हूँ। और जी जी या कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कोई टेस्ट मैंने नहीं कराया है कि मैं जी एक कान से थोड़ा मुझे कम सुनाई देता है लेकिन दूसरे से थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये कुछ नेचुरल जी है या कुछ प्रॉब्लम जैसा आपकी समझ में है? नहीं, इसमें ये है कि आप देखो, कान का मैटर कहीं होता है, हम्म। ये जो अपने साइनस होता है हम्म। उससे भी कान पे इफेक्ट आ जाता है। साइनस की बीमारी जुकाम वगैरह है। हाँ, दूसरी। अभी एक पेशेंट ऐसा ही था, हम्म। मेरे मिलने वाला था, हम्म। उसके बुखार आया था। बुखार में अचानक कान की सुनने की शक्ति चली गई। ओह। एलिपैथिक दवाइयों का उसके ऊपर साइड इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल सुनना बंद कर दिया उसने। हमने यही प्रयोग किया, 7 दिन उसके कान में एक एक बूंद डाली, एक एक बूंद नाक में डाली, वो सुनने लग गया वापस एज इट इज। तो मैं तो प्रयोगात्मक आधार पे बात करता हूँ, मतलब थ्योरी के ऊपर कम डिपेंड हूँ। थ्योरी से तो ठीक है, नॉलेज मिल गई अपने को, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं होगा तब तक कैसे मालूम पड़ेगा। तो मुझे ये भी है कि मुझे गले में हमेशा जो है ये कफ जो है वो स्टिकी रहता है। मोस्टली मेरा जी गला जो है ना वो कफ जैसा ये चिपका रहेगा, थोड़ा ज़्यादा होगा है जी। ना, तो ठंड में ज़्यादा होती है। तो ये रहता है, तो ये साइनस के कारण है क्या है, या उसमें ये तेल फायदा करेगा क्या? एक 30 साल से एक लेडी साइनस से परेशान थी, हम्म। वो ठीक हुई है। वो ठीक हुई है अच्छा। अनगोल के इसी प्रयोग से। अच्छा। अच्छा। तो आपकी जो भी डिटेल है, हम्म। आप मुझे अपन फोन पे बात कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैं आपको हम्म। बता दूंगा। हम्म। हालांकि अंकोल का मुकाबला नहीं है, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। आंखों का, कान, आंख, नाक, गला सब ओके हो जाएंगे, फेफड़े, लीवर, किडनी सब ओके हो जाएंगे। हाँ, बल्कि हमारे एक सबसे बड़े भाई जो हैं, उनको भी अभी हियरिंग मशीन लगानी पड़ती है और इससे काफ़ी फायदा होता है, तो हम तो उनको भी सुझाव देंगे। बल्कि हमको तो जी हाँ, जी हाँ। वीडियो भी हम उनको दिखाएंगे और फिर हम उनको भी बोलेंगे कि एक बार ट्राई करें उनको, ये जो दवा है उसको भी ट्राई करें। तो ये मामला है साहब। मेन थिंग क्या है कि आयुर्वेद में बहुत खजाना छिपा हुआ है, जानकार लोग कम है, कॉम्बिनेशन कम है, और ये कॉमर्शियल जमाना हो गया। तो हर आदमी 30-40 साल में हर आदमी के दिमाग में साइकोलॉजी बैठ गई, डॉक्टर की डॉक्टर की डॉक्टर की। ये तो इस पेनेडेमिक की वजह से लोगों को आयुर्वेद याद आने लगा है। इसमें भी हमारे पास में अब 10 मिनट ही समय बचा है और हमारे पास में सिर्फ और 2 सवाल ही बचे हैं। तो आपने अंकोल के बारे में तो बता दिया, इसका सही नाम अंकोल ही है ना, या और कुछ नाम आपने इसका हाँ, है? अंकोल है, एलेंजियम सोलिफालियम अंग्रेजी में नाम है इसका। ये आपके छपरा में इनमें होता है। नहीं, ये अगर होगा तो मेरे ही बगीचे में होता रहा होगा, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर को तो उस समय हम समझते हैं 68 वगैरह में ही गुजर गए थे। तो और उसके बाद में कोई ये नहीं। जामुन जैसे फल आते हैं, हाँ। इसके फल जामुन जैसे आते हैं, 15-20 फीट का झाड़ होता है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हाँ। मतलब कि जैसे ही आपको इमली की फली होती है वैसे ही बड़ी बड़ी फली होती है इसकी क्या? नहीं 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 नहीं, इसके तो जामुन जैसे फल होते हैं। अच्छा अच्छा, फल होते हैं जामुन के जैसे। हाँ, जामुन के फल थोड़े लंबे होते हैं, इसके फल गोल होते हैं। क्योंकि जब ये इतना चमत्कारी है तो मेरे बगीचे में अब जरूर रहा होगा। अभी तो मुझे याद नहीं, और अभी तो बाबा के गुजरने के बाद में कोई वहाँ था नहीं, तो अभी तो शायद वो सब पौधे है भी नहीं, है ना। जी जी। लेकिन फिर भी तो हमारे पास में सिर्फ ये अंतिम सवाल ही ये बचा है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स विल मैनेज देयर डे टू डे लाइफ विथ हर्ब्स। तो इसके बारे में कि आज के दिन में हम लोग कैसे हर्ष के सहायता से, है ना, हम अपने स्वास्थ्य को बना के रख सकते हैं। ये सवाल तो पहले भी मैंने पूछा था, तो इस पर अगर आप और कुछ बताना चाहें तो बताएं। इसमें सर ऐसा है हम्म। कि आयुर्वेद में 3 चीजें शामिल है: रसायन, हम्म। तंत्र मंत्र यंत्र, हर्ब्स,
और आपका खान पान, दिनचर्या, डे टू डे में ये सब चीज काउंट होती है कि आप स्ट्रेस कितना लेते हैं। वैसे दुनिया में 2 ही बीमारी है, टेंशन और मलेरिया, सब इनके बाय प्रोडक्ट है। और जो बीमारी है ना, वो इनके बाय प्रोडक्ट है। उनसे कोई बीमारी, वो एक अलग बात। तो डे टू डे हमें हमारे खान पान में ध्यान रखना है। सोना कब है, उठना कब है, बैठना कब है, वो हमारे राउत साहब का कोई पता ही नहीं है। 4 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं कि राउत साहब का तो ये मामला है। राउत साहब तो कम से कम चलो अपने काम में व्यस्त हैं, वो तो अलग बात है। अभी मैं पूछने वाला था, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दे तो मैं जल्दी से आपसे एक दूसरा सवाल पूछूं। हाँ, तो इसमें यही है, तो एक तो रसायन, हर्ब्स, खान पान, दिनचर्या, इनको यदि अपन रेगुलरली लेते रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि क्या नाम से 90% बीमारी से आदमी बच सकता है जी। और सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे राज साहब ने भी प्रयोग किए हैं अंकोल के बारे में। चर्चा हमारी जो सेशन पे रहेगी, हाँ हाँ मैं एक बार रिमोट में आ जाऊं, जनवरी के बाद हम एक एक सेशन रखेंगे। पर हाँ। एक जी चीज जी हम अनुभूति क्योंकि देने वाले जो है बैठे हुए हैं, और मैं तो बस यूज किया हूँ, ठीक है ना। आप मुझे मेरा देखिए, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है। सोने का तो जी जी टोटली ठिकाना नहीं है। और गुप्ता साहब भी जानते हैं, आप भी एक मित्र के हिसाब से आप भी जानते हो। पर एक चीज, एक खोजी आदमी जो होता है ना, उसके लिए बस एक हमेशा लैब ही नजर आता है, ठीक है। तो उस तरह से एक सवाल में इसको कनेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि सब कोई सोच हमारा सिर्फ इस सीपीयू में है। ओके, जो भी हम बनाते हैं, बनते हैं, जो भी लाइफ में, ओके, जो भी पेन गेन डिजीजेस जो भी चीजें हैं, अंकुल इसकी दवाई है। ये इसको बढ़ाती है। ओके, इसीलिए आपने एपिक में सुना होगा ना, एक महान पंडित हुआ करते थे जिनका नाम है रावण, ठीक है, जी जो सबसे बड़े विशेषज्ञ इसके थे। इसके बारे में आप भी पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है कभी से लैंग्वेज। तो हर्ब में, हर्ब एक्चुअली क्या है, हर्ब कोई पेड़ पौधा की कोई सब्जी नहीं है। ये केमिकल्स है, नेचुरल केमिकल्स है। हर केमिकल्स की, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो कि आप रिसर्चर हो, आपको आप ही जान सकते हो कि कौन सा केमिकल में कौन सा। जैसे हम जानते हैं कि कॉपर में क्या डालने से साइन होगा, तो उस टाइम में वो चीजों को, नेचर को ज्यादा डिजास्टर नहीं देने के लिए वो हर्ब्स को ज्यादा यूज हो। अंकुल, जैसे मैंने आपको पहले ही इस सवाल से पहले ही बता दिया था कि आपकी जो भी दिनचर्या है, जब तक ये नहीं बोले कि मैं थका हूँ, जब तक ये नहीं बोले कि मैं रुका हूँ, तब तक आप चलते रहेंगे। और अंकुल इसकी दवाई है, ठीक है, ये बॉडी की नहीं है, ये सीपीयू को ठीक करती है, ठीक है। बट एक ही चीज है कि खाने पीने का स्ट्रक्चर, बाकी का स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हमें सिस्टमाइज होना चाहिए मेडिकल के हिसाब से, कि पहले जमाने से ही बताया गया। और अगर हम अच्छे गाइडेंस में इसको फॉलो करें, फ्यूचर में हमें बहुत कुछ अच्छे इनिशिएटिव मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज है, पेड़ अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा, फल अगर अच्छा होगा तो दूसरा पेड़ भी अच्छा होगा। तो फ्यूचर को सस्टेन करना है तो हम सस्टेन होंगे तो फ्यूचर को करेंगे ना। हम ही नहीं होंगे तो फ्यूचर को क्या सस्टेन करेंगे। तो आजकल लोगों की कॉमन बीमारी है कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग फैशन है, और लाइफ तो हम्म, स्ट्रेसफुल है ही। तो जी आम आदमी उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, या चाहता भी है तो कर नहीं पाता है, अंदर से उसको आता नहीं है। बीमारी हो भी, वो चाहता है कि बीमारी हमारी ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाता। तो उनको जी। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप जल्दी से दे दें। हाँ हाँ। जैसे राउत साहब ने बताया है, इसके प्रयोग से धूम्रपान और ड्रिंकिंग पे भी इफेक्टिव असर आ जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात। जब आदमी का माइंड ठीक होगा तो ड्रिंकिंग नहीं करेगा, तनाव में ड्रिंकिंग करता है। अच्छा अच्छा। देखिए, सबसे बड़ा एडिक्शन जो बोलते हैं ना, एडिक्शंस, हम्म एडिक्शंस को जो मेडिकल टर्म से बोलते हैं ना, एक केमिकल की वजह से होता है जो हमारे ब्रेन से